नमस्कार, आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवानी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें। एक मेरे पास रिएक्शन आया है एन राघवेंद्र राव हैदराबाद से आज ही। Implementation of 50% pension for all in SBI is getting delayed because of the mess created by IBA and DFS in matter of pension updation. Calculations for pension updation has to be based not only on 50% pension but also on the different BPS periods in which pensioners retired, which means that 40% formula has to be necessarily removed retrospectively. PU is not actually an issue of bilateral settlement between IBA and UFBU. PU, pension updation, is a matter of procedure to be followed under the provisions of pension fund regulations of PSBs, which have the force of subordinate legislation and the prevailing case laws established by Supreme Court, High Courts. The issue of pension updation in 5 days banking, which also is not a matter of bilateral settlement between IBA and UFBU, somehow became bilateral settlement issues when bank employees went on strike 2 years ago on a call given by UFBU, or was it IAIBEA? And the Central Chief Labour Commissioner called both IBA and UFBU a conciliation meeting. The strike was then called off after IBA and UFBU agreed to settle both these two issues through bilateral settlement. Neither of them had powers to enter into such an agreement. The CCLC should not have accepted such an agreement. DFS was a silent spectator to what went on. The government of India should have then and there declared that the issues of 5-day banking and pension updation for PSBs fell under Government of India's power and jurisdiction, and that IBA cannot usurp this power and settle the issues with UFBU. The message has thus been created by government itself by its failure to address the industrial dispute which arose in banks and using IBA as a shield to escape its own responsibility. एन राघवेंद्र राव हैदराबाद ये था। इसके साथ एक रिएक्शन और भी मैं बता देता हूँ। इसके कंटिन्यूएशन में ये मेरे पास एक रिएक्शन आया है, सुने आप। शॉकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए ट्रेड यूनियन लीडर। ही इज जज्ड दैट पेंशन अपडेशन इज नॉट गोइंग टू अर्न हिम एनी ब्राउन आई पॉइंट्स बट रिजेक्टिंग इट विल कीप हिम क्लोजर टू द पीपल हु मैटर्स टू हिम। बट ही फॉरगॉट दैट the very same pensioners were his die-hard supporters for decades, some even after taking promotions. He has no reason to rub salt in pepper into the wounds of retirees. He could have been more charitable and more humane instead of spitting venom and fire on the helpless retirees at this stage of their life। इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं लोग बाग। नो आगे लिखते हैं वो, nobody is born as retiree but they are a product of time, there is no exception। In his unlimited wisdom he is threatening even cancellation of pension, the LVB example and privatization etc., which are all unwarranted references only to boost further his bloated ego ideal as an omnipotent subordinate. The pawn has become more loyal than
the king himself to deprive the helpless pensioners their rightful dues of deferred wages. How sad these were the leaders promising moon and fooling their members for lifelong. ये इस तरह के लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं। अब एक सज्जन और लिखते हैं, ये भी बता दूं आपको, ये हैं कार्निक हैं सूरत गुजरात से। ये कहते हैं, डियर श्री CHV, आई थिंक you do have heart to retrospect your deeds against retirees. Earlier also I have said you to please avoid carrying bundles of course. Now you have come out with the bogus plea of for 5 days week that you know well it could be persuaded even after signing settlement that would perhaps bring a glimpse of smile on the faces of many retirees who are on right side of 80 and 85 or more. May he bless you with wiser counsel to avoid deliberate harassment to our advanced age group. कार्निक सूरत गुजरात ये लिख रहे हैं। बताओ, इस तरह की टिप्पणियां हैं। इसी कंटिन्यूएशन में मैं आपको और भी बता दूं, एक यूनियन है, VK शर्मा हैं, ये महासचिव मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। इन्होंने एक कॉल दी है, मुझे देखो इसमें बड़ी आयरनी लग रही है, बड़ी गलत लग रही है, लेकिन आपको मैं सुना देता हूँ, बता देता हूँ, मैं कंडम करता हूँ इसे। 16 फरवरी 2024 समस्त जिला इकाइयों बैंक वाइज संगठनों एवं सदस्यों के लिए 16 फरवरी 24 को अखिल भारतीय विरोध कार्यक्रम, ये किसानों ने विरोध कार्यक्रम निकाला था, ये अभी आंदोलन जो चल रहे हैं, और ग्रामीण भारत को बंद किया था उन्होंने। इसी संदर्भ में ये अपना कह रहे हैं कि अखिल भारतीय विरोध कार्यक्रम है। आप सभी को विदित है, केंद्र सरकार की किसान जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी 2024 को देश भर में ग्रामीण बंद, औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल आदि के कार्यक्रम आयोजित कर विरोध कार्रवाई की जा रही है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन हमेशा इन आम संघर्षों का हिस्सा रहा है और इस कारण हमारे शीर्ष संगठन ने इन विरोध कार्यक्रमों को अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया है। अल्प सूचना और वेतन संशोधन वार्ता में हमारे शीर्ष संगठन की व्यवस्था को देखते हुए संगठन द्वारा हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया, वरना हड़ताल भी कर देते हैं। हमारे शीर्ष संगठन AIB ने आह्वान किया कि स्थानीय स्तर पर किसान श्रमिक संगठनों द्वारा आयोजित आज की विरोध कार्रवाई कार्यक्रमों में हमारे साथीगण जहाँ संभव शामिल होकर अथवा सोशल मीडिया में आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का समर्थन कर अथवा काला बिल्ला पहनकर एकजुटता का प्रदर्शन करें। क्रांतिकारी शुभकामनाओं के साथ VK शर्मा, महासचिव मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। तो ये हाल है इनका। अब ये राजनीति में लग गया कि किसान आंदोलन में लग गए, इसमें लग गया। अरे भाई, रिटायरीज को तो तुम जो तुम्हारे अपने हैं, जिनका तुमने चंदा खाया, 40 साल लेवी खाई है, उसको तो तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो और इनको कर रहे हो। वो तो बहुत ताकतवर है, 60 करोड़ 70 करोड़ किसान है और गवर्नमेंट का चक्का जाम कर देते हैं। गवर्नमेंट डरती है उनसे। वहीं चंडीगढ़ बात करने गए, तुम जंतर मंतर पर बैठ लेते हो, तब भी तुम्हारे से बात नहीं करते। और हम रिटायरीज हो, इतने लोग लगातार, अभी 4 तारीख में फिर धरना लगा था, 22 में लगाएंगे, उसमें तो कोई आता नहीं। तुम इनको कर रहे हो, तुम्हारे ये काम है, शर्म की बात है इनके लिए। खैर, किसानों से क्या तुम अपना कंपेयर करोगे? किसान तो 70 करोड़ हैं, जबरदस्ती गवर्नमेंट का अंगूठा गले पे लगा के करवा लेंगे अपना काम। तो वैसे भी उनकी वोट इतनी है, सरकार बिगाड़ना बनाना जानते हैं वो। कांग्रेस ने कर्ज माफी की थी किसानों की, सरकार दोबारा आ गई थी उनकी। अपने जब तुम्हारी कॉज होती है, कोई किसान या कोई आता है तुम्हारे साथ, कोई नहीं आता तुम्हारे साथ। और रिटायरीज का इसलिए तुम काम नहीं करा रहे। नमन साथियों, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो।